Now come to the next. Some metals like sodium and potassium react vigorously with dilute acid. It means when the sodium react with hydrochloric acid, it forms sodium chloride and hydrogen gas. In the same way, when magnesium react with HCl, it forms magnesium chloride and hydrogen gas will liberate. So metals like zinc, iron show moderate reactivity with acid, while tin and lead react very slowly. Metals like silver, gold, copper, platinum do not react even with dilute acids. Okay, so children, this point also you have to remember that silver, gold, copper and platinum are the examples of some metals which do not react with dilute acids. Now come to the next, that is activity number 8, to observe the reaction of metal with acid. So here what we have to do, here we have to take 5 ml of dilute hydrochloric acid in a test tube and put zinc granules into it gently. You will see bubbles being formed in the test tube. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. The burning matchstick goes off with a pop sound, showing that gas evolved is hydrogen. बहुत सिंपल एक्टिविटी है बेटा. एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और उसमें जिंक मेटल के कुछ पीसेस डालने हैं. ठीक है, थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि क्या होने लगता है, टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं और ये बबल्स होती हैं हाइड्रोजन गैस की. ठीक है, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस की हैं. ये समझने के लिए या इसको चेक करने के लिए जब हम एक जलती हुई माचिस को क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी मैच स्टिक बुझ जाती है विद पॉप साउंड. ओके, सो why this happen, or we can say what it shows that the evolving gas is hydrogen. Okay, now come to the next point, that is action of bases with metals. चलिए, most of the metals do not react with bases. Lead, aluminium and zinc are metals that react with strong bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide to form complex compounds with the evolution of hydrogen gas. Here also when the zinc and sodium hydroxide react with each other, it forms a compound whose name is sodium zincate. Okay, formula is Na2ZnO2 and hydrogen gas will also form over here. Okay, this is also a very important equation. Now come to the next one, that is displacement reaction. ओके, डिस्प्लेस होने का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, डिस्प्लेस होना यानी वहाँ से हट जाना. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट समझ के चलिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को मेटल सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, देखते हैं ये कैसे होता है. चलिए, we have seen that the metal reacts with air and water at different rates. Depending on these rates, we can arrange the metals in an order such that the most reactive metal is placed on the top of the series and the least reactive metal is placed at the bottom of the series. And this series is generally termed as reactivity series. Okay? Now, this series is generally termed as the reactivity series of the metal as shown along a side. देखिए, आपको दिखाई दे रही है ना रिएक्टिविटी सीरीज, अभी मैंने मार्क करी है ना. चलिए, the metals at the top of in this series can displace a less reactive metal. इस आपको देखिए इस सीरीज में जहाँ पे भी आपको कौन से मेटल्स नज़र आ रहे हैं, टॉप में वो मेटल कैसे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल है. अब यहाँ का टॉप कहाँ से शुरू होगा मालूम है, नीचे से. देखो नीचे में एरो, डाउन साइड एरो है ना यहाँ पे,
देखो डाउन साइड एरो। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं? प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना। तो क्या बोला है? द मेटल एट द टॉप इन दिस सीरीज कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट and less reactive metals cannot displace the more reactive metals from its salts. So a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt is called displacement reaction. ठीक है, चलो। when some zinc granules का एक एग्जाम्पल भी हमारे पास, देखो क्या दिया है? when some zinc granules are put in a beaker containing blue colored copper sulfate solution, the zinc which is more reactive than copper displaces copper from copper sulfate and the solution in the container becomes colorless due to the formation of zinc sulfate. चलिए हम इस चीज़ को ना अपनी सीरीज में चेक करते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आओ, इस सीरीज को। हाँ देखो, अब इस सीरीज में ध्यान से देखो, आप दो एलिमेंट की लोकेशन को मार्क करो। फर्स्ट एलिमेंट है आपका कॉपर, देखो कॉपर कहाँ है? यस, हियर इज द कॉपर। और दूसरा मेटल मैंने क्या बोला था? जिंक। चलो हम चलते हैं जिंक की ओर। मिला जिंक? यस, हियर इट इज। अब क्या करने के लिए बोला है इसमें मैंने? इसमें बोला है आपको कि आप एक काम करिए, आप सोल्यूशन ले लीजिए। किसका सोल्यूशन लेना है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मुझे ऐड करना है जिंक ग्रेन्यूल्स को। मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने क्या डाला है? जिंक डाला है। ठीक है, अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मैं ध्यान से देखूं तो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर की ओर है ना? दिख रहा है ना? देखो अब कॉपर डाउन साइड एरो है बेटा नीचे की ओर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, है ना। डाउन साइड एरो है, देखना ऊपर से नीचे, आप नॉर्मल टेबल में मत पढ़ना। एरो देखो, एरो कैसा है? नीचे से, है ना। एरो डाउन साइड एरो है ना। अब देखो तो क्या बोल रहा है इसमें? सबसे जो नीचे वाले एलिमेंट है ना वो लेस रिएक्टिव है, और सबसे ऊपर में जो पोटेशियम दिख रहा है ना वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और नीचे जो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर दिख रहे हैं ना वो लेस रिएक्टिव है। अब क्या कर रहा है बोला? देखो अगर इस सीरीज के हिसाब से आप देखोगे तो क्या है? कॉपर की पोजीशन नीचे है और जिंक की पोजीशन ऊपर है। इसका मतलब है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। इसीलिए जिंक को जब हम कॉपर सोल्यूशन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा सोल्यूशन था ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का था, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन थोड़े समय बाद कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसके लिए अब उसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, सो इट फॉर्म्स ZnSO4 plus Cu. Okay. So as you are seeing here that zinc Zn plus CuSO4, it forms ZnSO4 plus what? Copper. ठीक, चलो another example of displacement reaction is when zinc react with dilute hydrochloric acid but silver and gold do not. This is because silver, gold and copper are less reactive than hydrogen. देख ही रहे हो सीरीज में उनकी पोजीशन, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको उनकी पोजीशन अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज में आपको हमने दिखा दी थी। Now come to the next activity, that is activity number 9, to observe different displacement reaction. This you have to observe. Take 5 beakers with 1/4 water in each. Label them as 1, 2, 3, 4 and 5. Dissolve 2 gram of each of the substances given below and stir the content in each beaker. क्या करना है? बीकर नंबर 1 में लेना है आपको आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। हियर इज द बीकर 1, फर्स्ट बीकर 1। इसमें किसका सोल्यूशन लेना? आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पे।
सेकेंड बीकर है हमारी जिसमें हमको लेना है, देख रहे हो बीकर 2 लिखा हुआ है, वो है आयरन नेल और जिंक सल्फेट। थर्ड बीकर की ओर चलते हैं। थर्ड बीकर में है कॉपर टर्निंग्स, यानी कॉपर की छीलन है, ठीक है, कॉपर टर्निंग्स विथ आयरन सल्फेट। यहाँ पे बेटे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, देखो उसकी पहचान है, लाइट ग्रीन कलर का है ये सोल्यूशन, है ना। उसके बाद चलते हैं फोर्थ बीकर की ओर, कॉपर टर्निंग्स लिया है, यानी कॉपर की छीलन है और मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं फिफ्थ बीकर की ओर। फिफ्थ बीकर में हमने डाले हैं जिंक ग्रेन्यूल्स और कॉपर सल्फेट। चलिए अब क्या होना है यहाँ पे, देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट अ रेड पाउडरी मास ऑफ कॉपर सेटल्स एट द बॉटम इन बीकर 1 and 5 with the formation of iron sulfate and zinc sulfate respectively, and the blue color of copper sulfate disappears in both the beakers। क्यों? अभी पिछले एक्टिविटी में पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहाँ पे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक ऐड करने पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, जिससे ब्लू कलर का सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया था। वैसे ही जब आपने क्या करा था, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो क्या है बेटा, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके सोल्यूशन क्या दिखाया है, यू विल ऑब्जर्व दैट द रेड पाउडरी मास ऑफ द कॉपर सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर 1 and 5 विद द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये डिस्प्लेस्ड कॉपर, ये जो आयरन नेल है ना, इसके ऊपर डिपॉजिट होता चले जाएगा। तो आपको एक ब्राउन कलर का पाउडर सा नज़र आएगा, आयरन नेल के ऊपर डिपोजिशन नज़र आएगा, वो एक्चुअल में डिस्प्लेस्ड कॉपर है। और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, वो धीरे धीरे लाइटन होता चला जाएगा। चलिए उसके बाद का पॉइंट है हमारा डिस्पेयर ऑफ द बीकर। यू विल ऑब्जर्व दैट नो चेंज इन द बीकर 2, 3, 4। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बीकर में हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट मोर रिएक्टिव जिंक एंड आयरन डिस्प्लेसेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सेकेंड बीकर में आपने क्या लिया था, सेकेंड बीकर में आयरन नेल था और जिंक सल्फेट था, है ना, आयरन और जिंक था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है आयरन और जिंक में से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरे में लिया था कॉपर लिया था और कॉपर टर्निंग्स और आयरन सल्फेट लिया था, तो बोल रहा है थर्ड बीकर में भी कोई रिएक्शन नहीं है। और फोर्थ बीकर जहाँ कॉपर टर्निंग और मैग्नीशियम सल्फेट लिया है हमने, यहाँ पे भी हमें कोई रिएक्शन नज़र नहीं आता है। ओके, so this is all for today, children. In the next class we will discuss about the chemical properties of non-metals. So if you have any doubt in today's lecture, so just ask to me in the evening.